कैम इज़ वर्थ इक्विवेलेंट टू 6 months जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन कंप्लीट 1 semester। क्योंकि इस मॉड्यूल्स के कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि बंदा अपने एंड्रॉयड ऐप्स खुद बना सकता है, अर्निंग खुद कर सकता है, एंड घर बैठे इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन सकता है लिटरली। एंड आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप एंड एवरीथिंग, लेकिन जो इसके मॉड्यूल्स बनाए गए हैं वो भी एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, और जो इनको प्रेजेंट करने वाले हैं वो खुद एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं। सो आई एम totally looking forward for this event. So before starting off with the further session, let me give you a quick review of this bootcamp, including the benefits on completion, what you will get in the end and stuff. So benefits is course के like it can be called as a course or a boot camp, but it's like जो हम लोग 6 months में cover कर रहे हैं वो हम लोग 8 days में cover करेंगे, right? So full Android development course टाइप होगा, एंड्रॉइड स्कूलिंग होगी आप लोगों की A to Z, with everything will be provided by the speakers. They'll be totally on your in your service, help explaining you different concepts जो आप लोग Android development में implement कर सकते हैं, with Android gurus, the speakers, and who are Android developers in town as well. Goal is to make you Android ready. That is completely the goal for this bootcamp. Other than that, कोई हमारा खास मकसद नहीं था for making this Android bootcamp, but on special requests or a bunch and amount of requests, we thought like organizing some boot camp like this जो हम आप लोगों के फायदे में हो। On completion आप लोगों को DSC powered by Google एक certificate मिलेगा, which will be obviously of Google because Developer Student Clubs is linked, featuring an appreciation of top 3 cheetahs of this bootcamp will also be uploaded on our pages, on our all social medias. A surprise gift is awaiting for that one person who attempts all of the quizzes and ranks number one. So it's like quizzes के बारे में. Now what is the thing about quiz? Quiz के लिए rules ये हैं कि only those who RSVP for this event, for all of the events, for all 8 days, they will be included in the quiz and later in the withdraw of that particular surprise gift, right? So the link of the quiz आपको दी जाएगी at the end of the webinar. So it's really must कि आप लोग RSVP करके मीटिंग को पूरा सुनेंगे till the end, and then you will be getting that meeting link जो आपको quiz के लिए लेके जाएगी. All of those participants who RSVP, they will be given the link to that meeting, और आप लोग उसमें join करेंगे, and then you will be like gone for the quiz competition. If you still do have any questions, please drop in them in the team in the chat right now. टीम बैठी है जो आपको सारी क्वेश्चंस को आंसर करेगी. I hope that the things about the bootcamp are clear. Now let's move on to introducing you our speaker for today. He is Mohammed Taha. Mohammed Taha is yet another Android developer from the software department. However, his talents aren't just limited to Android development and coding. He also has a strong hold over Python and web development. Mohammed Taha, you can proceed further now. Happy learning. Fatma, assalamu alaikum everyone. Well, As you all know, Fatma told you guys that my name is Taha and I am a final year student from Software Engineering Mehran. Am I audible? yes, you are, Mohammed Taha. So let me. Taha, yes, you are audible. My screen is visible. Is my screen visible? No, it's not. Taha, is it good all at your end? Just wait a second. I think my internet is. Okay, wait on you.
Till then, guys, if you do have any questions regarding the bootcamp, you can feel free to just drop them in the chat. We are all seeing you, and we'd be happy to help you guys. Yes, Adil, we dropped you an email too कि आप लोगों को Android Studio install होना चाहिए, and we provided you a link as well. So I think that it's must कि आप लोग Android Studio अगर beforehand ready है तो you can do it. For the next sessions, it's really important कि आप लोग Android Studio install करके आए. And yeah, live coding is really must कि अगर it's like dedication पे भी depend करता है. So it's like if the speaker is giving you 100%, you guys should be pushing yourself as well. Um, आप लोग भी लाइव कोडिंग करें सो दैट वुड बी मच बेटर. यस, क्विज जो होगा बिल्कुल इस लेक्चर से इस पूरे सेशन से इंक्लूडेड ऑब्वियसली. सो इज देयर एनी अल्टरनेटिव? For now, it's really important कि आप लोग Android Studio अगर if there's an online terminal or something that can work, so you guys can join in from there too. So guys, since you guys are asking a lot about quiz, so let me tell you something कि quiz जो होगा हमारे end of the session आप लोगों को एक meeting link दी जाएगी जिसमें आप लोग transfer हो जाएंगे to the quiz competition room. Quiz competition में जितने भी participants हैं जिन्होंने RSVP की थी, they will be shifted there. What you have to do is like simply आप लोगों को quiz is I'm just dropping in कि um, Samila, can you check कि मोहम्मद ताहा की screen share नहीं हो रही? As Muzammil said. So for now, let's just get into it कि हम लोगों को कैसे quiz के लिए जाना है. तो quiz के लिए it's simple कि you will be shifted to the meeting and you have to just go on to the quizzes.com and I'm just dropping the link here. And then what you have to do, आप लोगों को सिर्फ sign up करना है through Gmail. Like completely आप Google account से उसको sign up कर लेंगे and आप लोगों you will be ready into that quiz. And then quiz में आपको सिर्फ code enter करना है and yes, that's probably it. और उसके बाद आप लोग quiz में enter हो जाएंगे and then you will have to attempt all of the 10 questions available. So I guess that's clear till right now. If it is, just do drop a yes or no so that I can be more explanatory over here. Yes, it is. Great. Hey, sorry for the technical problems. I guess it will be resolved in no time. Which programming language would be used? It would be first Java. Yes. Taha, are you there now? Yeah, you guys have to enter into quizzes.com. I'm just dropping in. Samira, can you drop the link quizzes.com key? And yes, Taha, are you back? Yeah. Okay, you can move on. All right. गाइस हम आपको बाद में जो है वो लिंक प्रोवाइड करेंगे जब क्विज़ेस का टाइम आएगा.
Okay, so in this lecture, basically what we are going to learn is the designing starters of Android. मतलब बस इसमें आप लॉजिकल प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, इसमें सिर्फ आप जो है ना एंड्रॉयड ऐप किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, यू विल बी लर्निंग जस्ट दैट। तो कंटेंट्स इसमें हम क्या क्या करेंगे कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड एंड व्हाट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो का, आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिव्यू दैट। ताहा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप थोड़ा-सा वॉइस क्लियर कीजिए। एंड क्लियर से लाइक दोबारा हाउ? कनेक्ट कीजिए। देख अब बेहतर है? पहले कुछ बोलिए। हेलो। Yes, it's good now. ओके, Yeah, it's better, but it somewhere. सॉरी आई डिडंट गेट दैट। Can you be a little more loud? So it's like saying low voice. ओके, इज इट गुड नाउ? Yeah, much better. We can go. Guys, please do cooperate if you guys can hear him. सॉरी अबाउट दैट, मतलब मुझे इशू मिल नहीं रहा, क्या इशू है? ओके, Okay, सो लेट्स गेट ऑन विद द लेक्चर। कंटेंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में वो है व्हाट इज़ एंड्रॉयड और व्हाट इज़ एंड्रॉयड का। आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑन दैट and we'll just be setting up Android Studio, and then I'll tell you what is activity and what is its life cycle and what is Android project structure, and then we'll be learning about layout and their types, and then I'll be telling you something called RES folder and what it does. So before we actually get started, I just want you guys to know that if you have any questions, just post them in the chat. I'll be checking the chat from time to time, and I'll answer your questions. Okay. Let's start. So basically, what is Android? Android एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो एंड्रॉयड की जो कोडिंग है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। बाद में तो वॉइस नॉट क्लियर। it's better, Taha. चैट में मैसेज आ रहे थे। ऑलराइट, तो इट्स लिनक्स बेस। इसका मतलब ये है कि जो एंड्रॉयड की जो बेसिस पे जो काम करता है वो लिनक्स का कर्नल जो है वो काम कर रहा होता है, यानी कि जो इसके अंदर जो ड्राइवर्स यानी इसके जो ड्राइवर्स जो हैं वो लिनक्स के ऊपर मतलब जो ड्राइवर्स इसके ऊपर होते हैं, कैमरा ड्राइवर्स हो गया या ऑडियो ड्राइवर हो गया, वो सारे लिनक्स कर्नल पे बेस्ड हैं, और दैट्स व्हाई यूज लिनक्स कर्नल फॉर दैट। और जो एंड्रॉयड का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, दैट इज़ द नेम ऑफ एंड्रॉयड सोर्स कोड। एंड्रॉयड जो है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था 2007 में। बेसिकली ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए लॉन्च हुआ था, लेकिन आजकल इट इज़ ऑल्सो यूज इन टीवीज़, एज यू ऑल नो। और इसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके लिए जो यूज़ होती हैं, आत्मा, आई थिंक माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर, पीपल आर मैसेजिंग इन द चैट। तहा भाई, आपकी वाकई वॉइस क्लियर नहीं है। आप एक बार ईयरफोन्स निकाल के फिर बात करें, मे बी तब क्लियर हो। आपकी माइक में मसला है।
हेलो। नहीं कहा भाई, आपकी माइक में बहुत ज़्यादा शोर है। अब बेटर है? जी जी जी, अब बेहतर है। आप ओके, let me share my screen again. I think it is already shown. All right. So Android Studio, what is Android basically? Android is an open source Linux based operating system. ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो इसका सोर्स कोड है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसका जो सोर्स कोड है, दे कॉल इट एंड्रॉयड ओपन स्टूडियो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। बेसिकली जो एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम वो 2007 में लॉन्च हुआ था। एंड्रॉयड 1.0 वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ की जाती हैं दे आर जावा, कोटलिन, एक्सएमएल, सी प्लस प्लस, और उसके अलावा सी शार्प और पाइथन भी यूज़ होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो जावा या कोटलिन होती हैं। जिसको जावा आती है दे यूज़ जावा, जिसको कोटलिन यूज़ करनी होती है दे यूज़ कोटलिन। अभी जो करंट एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है दैट इज़ 11। एंड डेवलपमेंट टूल वैसे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के काफ़ी होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन एंड डेवलपमेंट टूल जो होता है वो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है। देयर आर अ फ्यू रीजंस फॉर दैट। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये ऑफिशियल आईडी ही है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल एंड इट कम्स विद ग्रेडल। इसका ये फीचर ये है कि इट कम्स विद ग्रेडल। नाउ व्हाट इज़ ग्रेडल? ग्रेडल इज़ बेसिकली एन बिल्ड ऑटोमेशन टूल। इसका मतलब ये है कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो सारा कोड है उसको एपीके में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसका नाम ग्रेडल है। अगर ये ऑटोमेशन टूल ना हो तो वो सारी चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ेंगी, क्योंकि जावा का कोड होता है एंड देन देयर इज़ एक्सएमएल कोड एंड देन what Gradle does it just combines all the resources and the source code and produces an APK for your app. उसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो में गिटहब इंटीग्रेशन भी होती है। यू कैन जस्ट अगर आपने कोई कोड लिखा है तो आप डायरेक्टली गिटहब पे जो है वो पुश कर सकते हैं उसको। यू डोंट हैव टू यू नो गो टू द गिटहब टर्मिनल, और उसके अलावा जो जो उसकी कमांड्स होती हैं वो लगा के यू कैन जस्ट डायरेक्टली डू दैट हियर। उसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सी प्लस प्लस और एन डी के दैट इज़ नेटिव डेवलपमेंट किट की जो है वो सपोर्ट है। अब नेटिव डेवलपमेंट किट क्या होती है? वैसे तो जो बेसिक एंड्रॉयड लैंग्वेज होती है दैट इज़ जावा एंड कोटलिन, बट नेटिव डेवलपमेंट किट की भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे सी प्लस प्लस जो है एज यू ऑल नो कि उसका जो कोड है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो दैट गिव्स अ परफॉर्मेंस एडवांटेज। तो अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है दैट इज़ दैट रिक्वायर्स गुड परफॉर्मेंस, जैसे कि कोई गेमिंग हो गई, गेमिंग की एप्लीकेशन हो गई कोई, तो इट्स अ गुड चॉइस टू यूज़ नेटिव डेवलपमेंट किट। उसके अलावा इसमें बिल्ट इन सपोर्ट होती है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो गूगल सर्विसेज होती हैं जो गूगल ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स को क्लाउड पे, जिस तरह फायरबेस हो गया, तो इसकी सपोर्ट भी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अवेलेबल होती है। दैट इज़ वाई वी यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। उसके अलावा भी काफ़ी आईडीज़ होते हैं, इक्लिप्स के ऊपर भी काफ़ी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं एंड देयर आर अदर्स एज वेल। सो लेट्स गेट ऑन टू सेटिंग अप एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने के लिए ये जो लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यू विल जस्ट गो टू दैट और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यू विल बी शोन दिस बटन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। एंड देन आई गेस समवन जस्ट रेज देयर हैंड।
Taha, we can take their questions in the end. So yeah, you can proceed. All right. So when you click on this download button, you will be shown this window जहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी. आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन जस्ट क्लिक डाउनलोड स्टूडियो फॉर डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडोज़. तो डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. आफ्टर डाउनलोडिंग व्हेन यू क्लिक ऑन द सेटअप it will open up like this. First this screen and then when you click next it will show this screen. अब इस screen पे you are provided an option that whether you want to install a virtual device or not, whether you want to provide whether you want to download a virtual device or not. अब virtual device क्या होती है कि emulator basically ये होता है, debugging के लिए use होता है within Android Studio. emulator जो है वो built in होता है. तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि एमुलेटर जो है वो काफ़ी रैम कंज्यूम करता है. तो अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वर्चुअल डिवाइस तो बी श्योर कि यू हैव इनफ रैम टू यू नो यूज़ इट. मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं ये यूज़ नहीं करता. डिबगिंग के लिए जो है वो मैं फ़ोन ही यूज़ करता हूँ, बट दैट्स योर चॉइस बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो डज नॉट share RAM. And then we have and then there is this setup again, and then when you just click next and then install, and then it will start installing and your Android Studio will be installed. Now let's move on to some other concept, that is activity. So basically what is activity? Activity क्या होती है कि when you open up an app and you will see a single screen, मतलब एक टाइम पे when you are viewing an app. तो आप जैसे अभी आप टीम्स पर हैं, तो जो लोग मोबाइल पे टीम्स की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो दे विल बी शोन अ स्क्रीन. अब ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है दैट इज़ बेसिकली योर एक्टिविटी. अ सिंगल स्क्रीन इज़ एन एक्टिविटी. बिलो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी जो है ये व्हाट्सएप की स्क्रीन्स हैं. अब कहने को तो ये व्हाट्सएप ही है, ये सारा जो है ना व्हाट्सएप ही है, लेकिन ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. यू गेट दैट? मतलब कि जो एक सिंगल स्क्रीन जो आपकी मोबाइल के ऊपर नज़र आती है दैट इज़ जस्ट कॉल्ड योर एक्टिविटी, एंड व्हेन यू चेंज दैट स्क्रीन दैट इज़ अनदर एक्टिविटी. दैट्स नॉट द सेम एक्टिविटी. ओके, सो एक्टिविटी इज़ अ सिंगल फोकस थिंग दैट अ यूज़र कैन डू. और एक्टिविटी जो है ना वो इंटरेक्टिव ही होती हैं मोस्टली. इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि यू टच and then it performs some kind of function. Now that we are done with the concept of activity, let's move on to what is the life cycle of activity. यानी कि these things have a life cycle from on create to on destroy, मतलब creation से destroy तक इस सब का जो है वो life cycle होता है. So basically जो life cycle है, एक ऐप जो होती है आपके फ़ोन के अंदर उसको वो एक टास्क कहलाता है. एंड ईच टास्क हैज़ मल्टीपल एक्टिविटीज़, एंड मल्टीपल एक्टिविटीज़ ये जो हैं ये एक्टिविटी स्टैक्स में स्टोर होती हैं एक्टिविटीज़. सो अब एक एक्टिविटी अगर फोकस में है so it will be on top of the stack, and when another activity comes, as you can see here, this is activity 1 and then activity 2 came, and then activity 1 जो है वो stack के नीचे चली गई, और अब जो foreground पे है that is activity 2 जो आपको नज़र आ रही होगी वो activity 2 होगी. and उसके बाद जब activity 3 आएगी तो activity 2 मज़ीद जो है ना वो नीचे चली जाएगी और activity 1 जो है वो बिल्कुल एंड में चली जाएगी stack के. एंड व्हेन यू क्लिक बैक, और जब एक्टिविटी 3 का जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा दैन इट विल बी डिस्ट्रॉयड. अभी मैं मेथड्स डिस्कस करता हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज व्हाट. सो ऑन क्रिएट दैट इज़ द फर्स्ट मेथड दैट इज़ कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन एक्टिविटी. ये मेथड इसके नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ कॉल्ड व्हेन यू क्रिएट एन एक्टिविटी. इस मेथड को ओवरराइड करना जो है वो लाजमी होता है. When you're coding in Android Studio, so you'll just create a simple activity, but this method has to be overridden.
ये इसलिए ओवरराइड करना लाजमी होता है बिकॉज दैट एक्चुअली इसमें जो है वो हम सारा कुछ सेट करते हैं कि जो लेआउट हमने बनाया होता है, यानी कि जो जो एक्टिविटी किस तरह से दिखनी चाहिए, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ऑन क्रिएट के अंदर सेट करते हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है इफ़ यू नो इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट्स है। और ये सिर्फ एक दफ़ा कॉल होता है पूरी एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में। एंड व्हेन ऑन क्रिएट इज कॉल्ड, अच्छा ऑन क्रिएट के अंदर कोई विजिबल नहीं होती आपके पास एक्टिविटी। फर्स्ट इज ऑन क्रिएट इज कॉल्ड एंड देन ऑन स्टार्ट इज कॉल्ड। व्हेन योर एक्टिविटी इज विजिबल, ऑन स्टार्ट इज व्हाट एक्चुअली डज दैट। तो ऑन स्टार्ट में भी सिर्फ एक्टिविटी विजिबल होती है, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दिस एक्टिविटी येट। ऑन स्टार्ट के बाद जो है वो डायरेक्टली कॉल होता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम जो है ये मेथड जो है दैट इज एक्चुअली is responsible for letting you interact with the activity. अब ऑन रिज्यूम जब कॉल होता है तो इसके बाद यूज़र की इंटरेक्शन ऐप्स के साथ शुरू हो जाती है। ऑन रिज्यूम जो है वो सारा रनिंग स्टेट जो होती है बेसिकली ऐप की, वो इनिशियलाइज कर देता है। So let's look at this diagram once more. So when activity is launched, on create is called, and then on start is called, and then on resume is called. ठीक है, simply we'll just go in the linear manner. और उसके बाद on resume के बाद activity running state में आ जाती है। Okay, so after on resume there is a method on pause. This method is called when your activity has lost focus. अब लॉस्ट फोकस का मतलब ये है कि अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटी ओपन कर लें या फिर आपने कोई ऐसी डायलॉग बॉक्स कोई आपका जो है वो सामने आ गया है दैट इज टेक हैज टेकन अवे द फोकस ऑफ योर एक्टिविटी, तो ऑन पॉज मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। ऑन पॉज यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सिस्टम कॉल्स दिस मेथड एज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द यूजर इज लीविंग योर एक्टिविटी। अब ऑन पॉज कॉल होने का मकसद ये भी हो सकता है कि जो यूज़र है वो एक्टिविटी आपकी लीव कर रहा है, यानी कि अगर आप बैक प्रेस कर देते हैं तो दैट एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल। एंड्रॉयड थिंक्स दैट यूज़र माइट नॉट बी बैक। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है, मतलब पहला पहला मेथड ये कॉल होता है। ऑलराइट, आफ्टर ऑन स्टॉप, उसके अलावा अगर आपके पास जैसे मल्टीपल विंडोज़ होती हैं कुछ फ़ोन्स के अंदर, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वन विंडो तो जो दूसरी विंडो है उसके ऊपर जो एक्टिविटी विजिबल है दैट विल बी पॉज्ड फॉर अ व्हाइल। उसके बाद ऑन पॉज के बाद डायरेक्टली कॉल होता है। ये मेथड्स में आपको सारे, मेरे पास एक ऐप है, आई विल शो यू कि किस तरह से ये सारे मेथड्स काम करते हैं, एंड देन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो मज़ीद हेल्प करेगा। ऑन स्टॉप इज़ द मेथड जिसमें एक्टिविटी जो है वो स्टॉप्ड स्टेट में आ जाती है। या तो दिस इज़ व्हेन द एक्टिविटी इज़ एक्चुअली स्टॉप्ड। So let's look at the diagram once more now. So when activity is launched, you will create on create method जो है ना वो कॉल होगा, और उसके बाद on start कॉल होगा, and then on resume कॉल होगा। ठीक है, डायरेक्टली ये तीनों मेथड्स कॉल होंगे एंड देन एक्टिविटी आ जाएगी रनिंग स्टेट में। अब कोई और एक्टिविटी जो है वो फोरग्राउंड में आ गई। फोरग्राउंड का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताया था एक्टिविटी स्टैक्स में, कि स्टैक के जो टॉप पर होगी एक्टिविटी दैट विल बी ऑन द फोरग्राउंड। तो व्हेन एक्टिविटी इज़ इन रनिंग स्टेट और कोई और एक्टिविटी अगर फोरग्राउंड में आ जाती है तो ऑन पॉज कॉल होगा, एंड देन ऑन पॉज कॉल हुआ, और ऑन पॉज के बाद अगर यूज़र दोबारा रेज्यूम कर देता है उसी एक्टिविटी पे तो ऑन रिज्यूम कॉल होगा। एज यू कैन सी देयर इज़ एन एरो ऑन पॉज के बाद, इफ़ यूज़र रिटर्न्स टू दैट एक्टिविटी एंड देन ऑन रिज्यूम विल बी कॉल्ड। ओके, तो ऑन पॉज के बाद अगर एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं है,
तो ऑन स्टॉप कॉल होगा, यानी कि यूज़र ने बिल्कुल ही ऐप को जो है ना बंद कर दिया है, ऐप को या तो बैक कर दिया है, किसी और एक्टिविटी पे चला गया, जैसे कि व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप पे व्हेन यू आर लिस्ट आ रही होती है एक मैसेजेस की, तो व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्सन, मतलब अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप उनके चैट पे क्लिक करते हैं और उनका चैट ओपन हो जाता है। तो जो चैट विंडो थी प्रीवियस, जहाँ पे आपके सारे चैट्स विजिबल थे, जहाँ पे लिस्ट आ रही थी चैट्स की, दैट एक्टिविटी इज स्टॉप्ड बिकॉज दैट एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल टू यू. So that is when on stop is called. ओके, तो अगर यूज़र बिल्कुल ही जिस तरह आप ओवरव्यू में देखते हैं, आपने कोई ऐप जो है ना बैक करी, एंड देन बैक करने के बाद आपको जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होती है ऐप, दैट इज़ नॉट विजिबल, तो ऑन स्टॉप उस टाइम जो है ना वो स्टॉप स्टेट में होती है एक्टिविटी. अगर आप ओवरव्यू से भी जो आप तीन तीन जो ओवरव्यू अगर आप क्लिक करते हैं अपने एंड्रॉयड पे, ओवरव्यू जो सारी ऐप्स का आता है, तो वहाँ से अगर आप उस एक्टिविटी को रिमूव कर देते हैं, देन ऑन डिस्ट्रॉय विल बी कॉल्ड एंड द एक्टिविटी विल शट डाउन. अब ये तो सारी इसकी थ्योरी हो गई. लेट मी जस्ट, आई हैव क्रिएटेड एन ऐप फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को बेटर जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए. लेट मी जस्ट, ऑलराइट, सो दिस इज द मेथड. अब यहाँ पे लेट मी शो यू वंस अगेन. अब मैं यहाँ पे जब इस ऐप को ओपन करूँगा, तो आप टोस्ट में चेक कीजिएगा. टोस्ट मतलब यहाँ पे नीचे की साइड पे जो है वो यू विल सी अ टोस्ट मैसेज के एक्टिविटी का कौन सा मेथड जो है ना वो कॉल हो रहा है. व्हेन आई क्लिक, when I click on this app, this is called, first on create is called, then on start is called, and then on resume is called, and the activity is in the running state. Now I have created two buttons. अगर मैं यहाँ पे open second activity पे click करता हूँ तो एक new activity खुलेगी. अब ये previous activity first is on pause is called and then on stop is called. यहाँ पे on destroy अभी call नहीं हुआ है because that activity is still alive. अभी तक वो activity है activity stack में. I have not destroyed it yet. When I click back, again on start is called and then on resume is called on this activity, and the activity is again in the running state. All right, so when I click open third activity, so it is basically a dialogue, as you saw that on pause was called. Open third activity and then on pause is called. तो इट इज़ होल्ड, मतलब ये अभी जो है ना ऑन पॉज स्टेट पे जो है ये होल्ड हुई हुई एक्टिविटी. एंड व्हेन आई क्लिक बैक अगेन ऑन रिज्यूम इज कॉल्ड एंड द एक्टिविटी इज इन रनिंग स्टेट अगेन. वन मोर थिंग दैट आई would like to show you guys. So अगर मैं इसकी रोटेशन ऑन करता हूँ डिवाइस की, एंड व्हेन आई रोटेट माय डिवाइस, तो रोटेट होने के बाद पहले ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय तक पूरा कॉल होगा. ऑन स्टॉप, ऑन पॉज एंड ऑन डिस्ट्रॉय फर्स्ट विल बी कॉल्ड.
उसके बाद ये एक्टिविटी दोबारा क्रिएट होगी ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड देन ऑन पॉज, सॉरी ऑन रिज्यूम, एंड देन एक्टिविटी विल बी इन द रनिंग स्टेट अगेन। सो जब रोटेट करते हैं स्क्रीन को तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होके दोबारा इंस्टेंशिएट होती है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू द PPTs. Okay, so on destroy after that. Okay, तो उसके बाद तो दिस इज समथिंग इन सम इंफॉर्मेशन अबाउट कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है किस एक्टिविटी की। मतलब अगर एक्टिविटी क्रिएटेड स्टेट में होगी तो वो फोरग्राउंड में होगी, व्हेन इट इज स्टार्टेड एंड व्हेन इट इज रिज्यूम तो वो रनिंग स्टेट में होगी, एंड इट विल बी इन द फोरग्राउंड, इट विल हैव द फोकस और वो विजिबल होगी। ठीक है, और उसके बाद जब एक्टिविटी पॉज्ड स्टेट में जाएगी देन इट विल बी इन द बैकग्राउंड और वो फोकस खो चुकी हुई। जिस तरह मैंने ओपन थर्ड एक्टिविटी पे क्लिक किया था तो एक्टिविटी जो प्रीवियस वाली थी वो विजिबल तो थी बट इट वाजंट फोकस्ड। जो फोकस था वो मेरी थर्ड एक्टिविटी पे आ गया था जो कि एज अ डायलॉग मैंने ओपन करी थी। तो उस स्टेट में जो है वो ऑन पॉज कॉल होगा और उसके बाद व्हेन आई हैव सेकंड एक्टिविटी जब मैंने ओपन करी थी तो एक्टिविटी जो है ना वो स्टॉप स्टेट में चली गई थी, क्योंकि सेकंड एक्टिविटी जब मैंने ओपन करी थी तो फर्स्ट एक्टिविटी जो थी वो विजिबल नहीं थी। सो इट वाज इन द स्टॉप स्टेट। पहले ऑन पॉज कॉल हुआ बिकॉज इट लॉस्ट फोकस्ड एंड इट लॉस्ट विजिबिलिटी एज वेल, तो उसके बाद ऑन स्टॉप भी कॉल हुआ, एंड देन activity when it is destroyed and then the process state is empty. All right, so I hope you all got that. Let's move on. Project structure of Android Studio का क्या होता है? When you create कोई भी प्रोजेक्ट आप जब Android Studio के अंदर क्रिएट करते हैं तो 4 मेन फोल्डर्स जो है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 3 मेन फोल्डर्स लिखा है लेकिन इट इज एक्चुअली 4. So 4 main folders you will see, Java, Manifest, RES and Gradle scripts. So I'll tell you one by one what are these. Java folder में क्या होता है? Actually Java folder यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है because I have created application, Android application जो है वो मैंने Java से create की थी. Like I told you in the beginning कि Kotlin भी use कर सकते हैं, Java भी use कर सकते हैं. I have used Java, that's why this folder is named Java. तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि दिस फोल्डर हैज़ द सोर्स कोड, जितनी भी लॉजिकल फंक्शनल कोड जो मेरा होगा दैट विल बी इन द जावा। जो एक्टिविटी के फंक्शंस परफॉर्म होने होंगे इट विल बी ऑल इन द जावा। इसमें हम पैकेजेस भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं और मज़ीद अगर एक्टिविटी भी हम ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। नाउ तो बेसिकली आपको जो मेन एक्टिविटी होगी वो सिंपली इस पैकेज के अंदर शो होगी, com.example.whatever the project name that you have given, और उसके बाद आपकी जो बेसिक जो मेन एक्टिविटी होती है वो मेन एक्टिविटी के नाम से ही क्रिएट होती है। एंड देन यू हैव 2 अदर फोल्डर्स जिसमें जो है वो यूनिट टेस्ट है। ये जो नीचे वाला फोल्डर है जिसमें सिर्फ ब्रैकेट में टेस्ट लिखा हुआ है दैट इज़ द यूनिट टेस्ट, सिंपल यूनिट टेस्ट जो कि आपके लैपटॉप पे ही होगा जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड दीज आर द यूनिट टेस्ट जो कि आपकी एंड्रॉयड डिवाइस पे होगा। तो दीज आर बेसिकली द 2 टेस्ट फोल्डर्स। अगर आप यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हैं देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट, अदरवाइज जो मेन काम होता है वो इस पैकेज में होता है। सो मूविंग ऑन टू मैनिफेस्ट फोल्डर। अब मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है एंड्रॉयड manifest.xml। एंड्रॉयड manifest.xml में जो है वो इंफॉर्मेशन होती है पैकेज के हवाले से, या कितनी एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ हुई हैं और कौन कौन सी परमिशंस यूज़र्स जो है ना वो यूज़र से जो है ना रिक्वायर करनी है आपको, और कौन कौन सी सर्विसेज हैं इसमें। अब
ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जो ऐप को जो है ना, जो डिवाइस को ऐप के बारे में परमिशन, जिस तरह आप गूगल प्ले से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे यू आर आस्क्ड फ्यू थिंग्स के ये मतलब उसके ऊपर गूगल प्ले से जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे गूगल प्ले क्या करता है, पहले उस ऐप का मैनिफेस्ट देखता है, ऐप मैनिफेस्ट, और उसके अंदर जो जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये जस्ट आपकी डिवाइस के साथ, और फिर जब आप ऐप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद वो परमिशंस इसी वजह से आपको शो करवा रहा होता है क्योंकि वो मैनिफेस्ट के अंदर लिखी होती है कि दिस ऐप विल रिक्वायर दिस काइंड ऑफ परमिशंस। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू RES फोल्डर। अब RES जो है इसकी बेसिकली इसका जो है वो रिसोर्सेज होती हैं इस फोल्डर के अंदर, एक्सटर्नल रिसोर्सेज। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐप्स के अंदर इमेजेस भी होती हैं, कुछ ऐप के अंदर जो है वो साउंड भी बड़ा अच्छा सा चल रहा होता है, और डिफरेंट एनिमेशंस भी जो है ना वो शो होती हैं ऐप्स में। तो बेसिकली वो रिसोर्सेज आती कहाँ से हैं? वो रिसोर्सेज इस RES फोल्डर में होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, लेआउट्स भी हो सकते हैं, लेआउट I'll tell you what layout is, इमेजेस भी हो सकती हैं, डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाट RES फोल्डर इज। अब ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होती है? ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में ग्रेडल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ग्रेडल एक बिल्ड सिस्टम होता है जो कि आपकी बिल्डिंग ऐप की जो है ना वो ऑटोमेट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जो सोर्स कोड है जितना भी आपका लिखा हुआ जावा या कोटलिन, और जो XML कोड आपने लिखा हुआ है, XML नेसेसरी है, जावा या कोटलिन यूज़ करें ना, बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर द UI डिज़ाइनिंग। तो ये सारा सोर्स कोड और जितनी भी इमेजेस और जो भी आपने यूज़ किया होता है उन सबको ग्रेडल कंबाइन करते करके एक APK में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो उस सब के लिए ये स्क्रिप्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो ये इसलिए यहाँ पे मौजूद होता है। यू विल हार्डली एवर मेक चेंजेस इन दिस। अगर आपको कोई डिपेंडेंसीज ऐड करनी है देन यू विल बी टचिंग दीज फाइल्स, अदरवाइज बेसिक डेवलपमेंट के लिए वी विल नॉट बी यूजिंग दैट। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर RES फोल्डर अ लिटिल मोर। अब RES फोल्डर के अंदर एज आई टोल्ड यू गाइस कि इसमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज होती हैं। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर किस किस तरह की रिसोर्सेज होती हैं, ये कौन कौन से फोल्डर्स आ सकते हैं? अब ये सारे फोल्डर्स मौजूद नहीं होते RES फोल्डर्स में ना, RES फोल्डर में ना, तो इसमें कुछ फोल्डर्स मौजूद होते हैं और कुछ नहीं होते। आई विल टेल यू अबाउट ऑल ऑफ देम। सो पहला फोल्डर जो होता है वो हमारे पास रिसोर्स के अंदर जो आ सकता है वो एनिमेशंस का फोल्डर होता है, एनिमेटर फोल्डर, जिसके अंदर प्रॉपर्टी एनिमेशंस डिफाइंड होती हैं। और एक और फोल्डर होता है जिसमें एनिम जो है ना वो फोल्डर का नाम होता है, और ट्विन एनिमेशंस इसमें डिफाइंड होती हैं। प्रॉपर्टी एनिमेशंस और ट्विन एनिमेशंस हमारा टॉपिक तो नहीं है, बट आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। जो ट्विन एनिमेशंस हैं, प्रॉपर्टी एनिमेशंस हैं, दे आर एडवांस्ड वर्जन ऑफ यू नो ट्विन एनिमेशंस। प्रॉपर्टी एनिमेशंस जो है ना वो एडवांस्ड वर्जन होती हैं ट्विन एनिमेशंस का। तो इट्स जस्ट दैट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन में जाके यू कैन जस्ट एक्सप्लोर। उसके बाद यहाँ पे कलर की रिसोर्सेज होती हैं। कलर की रिसोर्सेज में हम कलर स्टेट लिस्ट जो है ना वो रिसोर्सेज करते हैं, जैसे कि ये बटन प्रेस हो तो कौन सा कलर हो, अगर एक्टिविटी का फोकस लॉस्ट हो जाए तो कौन सा कलर शो हो। इस तरह की जो XML फाइल्स होती हैं वो हम कलर फोल्डर में डालते हैं। एंड देन देयर इज़ ड्रॉएबल फोल्डर। ये फोल्डर हमारे पास इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी व्हेन यू क्रिएट द प्रोजेक्ट। अब इस फोल्डर में क्या होता है? इस फोल्डर में बेसिकली इमेजेस होती हैं जो आपकी ऐप यूज़ करना चाहती है। अब इमेजेस होती हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर लॉन्चर आइकन्स नहीं होते। अब लॉन्चर आइकन्स के लिए जो फोल्डर होता है दैट इज़ मिप मैप फोल्डर। मिप मैप फोल्डर के अंदर यहाँ पे लॉन्चर आइकन्स होते हैं। ड्रॉएबल के अंदर लॉन्चर आइकन्स नहीं रखे जाते, मिप मैप में रखे जाते हैं। ऑल्दो बोथ आर इमेजेस, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है
कि जो जब एंड्रॉयड की जो स्क्रीन्स होती हैं दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज़, मतलब हर एंड्रॉयड की स्क्रीन की कुछ जो है ना डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। मतलब कुछ एंड्रॉयड का जो है ना वो पिक्सल हाई होता है, कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस का जो पिक्सल है वो लो होता है। तो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर वेरिएंट्स भी शो होते हैं ना, मतलब कि हर हर डिवाइस के हिसाब से, जैसे कि एक ही ड्रॉएबल इमेज जो है ना आप शो नहीं करेंगे, आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाएंगे और उस एक ही इमेज को आप मल्टीपल तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे, ताकि हर डिवाइस के अंदर, जैसे एक डिवाइस है जो हाई डेंसिटी सपोर्ट करती है तो बाकी सारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी एंड ओनली दोज फाइल्स इन हाई डेंसिटी फोल्डर विल बी यूज्ड। तो लेकिन मिप मैप में ऐसा नहीं होता। मिप मैप के अंदर क्योंकि सारी फाइल्स रखी जाती हैं तो प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, इसीलिए ड्रॉएबल फोल्डर को जो है ना वो उसके अंदर आइकन्स नहीं रखे जाते, मिप मैप में रखे जाते हैं। एनीवेज, लेआउट जो है, दिस इज़ द फोल्डर जहाँ पे आपका एक्चुअली लेआउट शो होता है। लेआउट सिंपली क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटी है उसके डिज़ाइनिंग के, वो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें, क्या क्या नहीं होना चाहिए, buttons and text fields, you know. And then we have the menu folder. अब मेन्यू फोल्डर के अंदर आपके पास सिंपल जो मेन्यूज़ आपने देखे होंगे कि अगर आप किसी को किसी लिस्ट के अंदर या किसी भी कंपोनेंट को आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो एक मेन्यू अपेयर हो जाता है, या फिर ऐप के जो टॉप पे 3 डॉट्स बने हुए होते हैं, यू क्लिक ऑन दैट एंड दैट मेन्यू विल बी अपेयर्ड, यू नो। तो उस तरह की जो XML फाइल्स होती हैं वो मेन्यू फोल्डर में रखी जाती हैं। एंड देन देयर इज़ रॉ फोल्डर। रॉ फोल्डर में क्या होता है कि आपके पास ऐसी XML फाइल्स जिनको आप उनकी रॉ फॉर्मेट में ही जो है ना यूज़ करना चाहते हैं, तो दीज आर प्लेस्ड इन द रॉ फोल्डर। एंड देन देयर इज़ वैल्यू फोल्डर। वैल्यूज़ फ़ोल्डर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, इस वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि कलर्स आपने कौन कौन से यूज़ करने हैं वो आपने उस कलर की वैल्यू हेक्स फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप वैल्यू फोल्डर के अंदर एक XML फाइल बनाते हैं। कलर्स डॉट XML बेसिकली फ़ाइल का नाम होता है जिसमें कलर्स शो होते हैं, और यहाँ वहाँ पे आप सिंपली जो है ना वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप सिंपली वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं और उस वैल्यू को फिर आप थ्रू आउट योर होल प्रोग्राम यू कैन जस्ट यूज़ दैट। ठीक है, उसकी कोई ना कोई आप आईडी असाइन करते हैं और उस आईडी के थ्रू आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप जो है ना सिंपली उस वैल्यू स्ट्रिंग या कलर्स में, XML में या जो भी वैल्यू, उसके अंदर आप जाके चेंजिंग करेंगे तो वो पूरी सब जगह जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम वैल्यू फ़ोल्डर जो है ना यूज़ करते हैं। एंड देन देयर इज़ XML जिसमें जो है ना वो रॉ XML होती है। एंड देन फ़ॉन्ट, अगर आपको कोई मज़ीद इंक्लूड करना है तो दे आर प्लेस्ड इन द फ़ॉन्ट। जो फ़ोल्डर्स आपके पास ऑलरेडी प्रेज़ेंट होंगे बेसिक लेवल पे, आज जो आप जो फ़ोल्डर्स यूज़ करेंगे वो होंगे वैल्यूज़, ड्रॉएबल फ़ोल्डर, मिप मैप फ़ोल्डर एंड द लेआउट फ़ोल्डर। ये फ़ोल्डर्स आपके पास इंक्लूड कर सकते हैं बाकी फ़ोल्डर्स को, लेकिन यू विल नॉट बी यूजिंग देम, यू नो, इन द बेसिक लेवल। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू लेआउट। सो अब एंड्रॉयड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं ना, व्यू ग्रुप होता है और व्यू होता है। बेसिकली व्यू इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूआई, एंड्रॉयड यूआई। और जो व्यू ग्रुप होता है, व्यू ग्रुप इज़ द, जो उसके नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ व्यूज़। ठीक है, तो अब लेआउट के अंदर हम मल्टीपल व्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर मल्टीपल बटन्स होते हैं, बटन्स के अलावा उसके ऊपर टेक्स्ट व्यूज़ भी होते हैं। तो बेसिकली ये बटन्स और टेक्स्ट व्यूज़ मतलब जो सिंपली टेक्स्ट लिखा होता है वो, और फ़ील्ड्स होती हैं, इस तरह साइन इन जो है ना वो विंडो होती है, साइन इन एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर आपके पास फ़ील्ड होती है, यू जस्ट एंटर समथिंग, तो वो जो फ़ील्ड है दैट इज़ कॉल्ड एडिट टेक्स्ट व्यू। और ये व्यूज़ मल्टीपल एक स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो प्रेज़ेंट होते हैं, और इन सबको जो है एक इनविजिबल कंटेनर में रखा जाता है जिसका नाम है लेआउट। लेआउट एक्चुअली उसको बोलते हैं। ऑलराइट, इट डिफाइंस अ स्ट्रक्चर for a user interface in your app such as an activity.
सो अब लेआउट होता है XML कोड में, अगर हम इसको देखें तो लेआउट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं लेआउट डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हेयर, यहाँ पे जो है हम XML का वर्जन जो है ना वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे XML वर्जन 1.0 हम यूज़ कर रहे हैं। इनकोडिंग यहाँ पे UTF-8 यूज़ कर रहे हैं। ये असल में मेटा डेटा होता है जो कि डिवाइस को ये बताता है कि XML को इस फॉर्मेट में रीड करना है। देन दिस इज़ द टाइप ऑफ लेआउट ना, लीनियर लेआउट एक टाइप है लेआउट की, उसका हमने यहाँ पे टैग यूज़ किया है XML का। XML का अगर आप देखो तो ये HTML अगर आपने कभी देखी हो तो मोस्टली ये उसी तरह से जो है ना वर्क कर रही होती है। टैग्स होते हैं इसमें और सिंपली एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट टैग है लीनियर लेआउट का ना, इस लीनियर लेआउट के अंदर हमने पहला एट्रीब्यूट लगाया है XML NS एंड्रॉयड और दिस। ये बेसिकली एक नेम स्पेस है। ये सिंपली हमने जो आगे यूज़ करने हैं जैसे कि एंड्रॉयड लेआउट विड्थ और एंड्रॉयड ID और एवरीथिंग, इसके ये असल में जो है ना इन सब के लिए यूज़ होता है। मतलब इन सबको एज ए पैकेज काम करता है। इफ़ यू हैव यूज्ड पैकेजेस इन जावा या फिर आपने कोई फाइल्स जो है ना वो इंपोर्ट करी हो, तो ये असल में इसका जो है ना काम करता है। ये लिंक अवेलेबल वैसे तो नहीं है जो यहाँ पे दी हुई है schema.android.com APK। ये जो लिंक है ये अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट ओपन। लेकिन ये जस्ट एक नेम स्पेस होता है जो कि इस एट्रीब्यूट को एंड्रॉयड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर विड्थ इसको जो है ना वो डिफरेंट बनाता है बाकी एट्रीब्यूट से। तो उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड विड्थ जो है ना ये एक एट्रीब्यूट है इसका जो कि इसकी विड्थ स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे मैच पेरेंट एक जो है ना कांस्टेंट आप समझ लें कि है जो इस लेआउट का पेरेंट होगा ना। अब लेआउट का जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, मतलब अभी तो ये पहला ही लेआउट है, तो इसका जो पेरेंट होगा ये जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है इसको एज अ पेरेंट कंसीडर किया जाएगा और उसकी जितनी लेंथ होगी ना उस हिसाब से इस लेआउट की लेंथ हो जाएगी, सॉरी विड्थ हो जाएगी। उसकी जितनी विड्थ होगी तो उस हिसाब से इस लेआउट की विड्थ सेट हो जाएगी। एंड देन अगेन इसी तरह जिस तरह विड्थ हमने सेट की थी इसी तरह वी कैन सेट द हाइट मैच पेरेंट। ये तो इसकी ये जो लेआउट है ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका फैल जाएगा। एंड देन इसकी ओरिएंटेशन हमने रखी है। व्हेन वी लर्न द लीनियर लेआउट in the coming slides you will know what orientation is. Basically orientation ये होती है कि जो व्यूज हैं आपके वो वर्टिकल फॉर्मेट में जो है ना वो प्लेस हो। आपको शो करवा देता हूँ। इस तरह ये है, इसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रखी है और जो व्यूज हैं दीज आर प्लेस्ड इन द वर्टिकल फॉर्मेट। मतलब पहला व्यू इधर आएगा एंड देन सेकंड व्यू जब आप उसको इंक्लूड करेंगे तो बजाय उसके बराबर में आने के इट विल कम इन द बॉटम ऑफ इट, बॉटम ऑफ द प्रीवियस व्यू यू नो। एंड देन वी हैव ओरिएंटेशन हमने सेट कर ली वर्टिकल और उसके बाद हमने जो है टेक्स्ट व्यू इंक्लूड करा है इस लेआउट में। यहाँ पे टैग जो है वो लीनियर लेआउट का एंड नहीं हुआ है, एंड लेआउट इसका यहाँ पर है और उसके अंदर व्यू ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया था क्योंकि लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है तो यहाँ पे हमने इसका एट्रीब्यूट सेट करे। एट्रीब्यूट सेट करने के बाद हमने इसके अंदर मल्टीपल व्यूज भी ऐड करना शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पे पहला हमने टेक्स्ट व्यू जो है ना वो ऐड करा है जिसकी ID। अब ID क्या होती है, ID एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट सब में होता है, व्यू ग्रुप्स में भी होता है और व्यूज़ में भी होता है। तो ये ID एक्चुअली क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक उसको नाम दिया जाता है। अगर हम जावा सोर्स कोड के अंदर इसको एक्सेस करना चाहें इस कंपोनेंट को जो कि अगर हमें करना है तो हम उस ID का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमने इसका लेआउट विड्थ हमने सेट करी है। लेआउट विड्थ मतलब ये जो हमने टेक्स्ट व्यू दे रहे हैं इसकी हमने विड्थ सेट करनी है। एंड देन विड्थ सेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट दिया है रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना इस टेक्स्ट व्यू के अंदर कंटेंट आ रहा है, अब टेक्स्ट व्यू मतलब कि जो भी आपका सिंपली टेक्स्ट डिस्प्ले होना है सामने, सिंपली जो है ना आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होना है, कोई उसका फंक्शन नहीं होगा, इट विल जस्ट डिस्प्ले। तो उस कंटेंट को जो है ना हम टेक्स्ट व्यू बोलते हैं, उस व्यू को। तो अब यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट डाला है इट इज़ हेलो आई एम अ टेक्स्ट व्यू।
तो अगर ये जितना इसकी टेक्स्ट व्यू की लेंथ होगी, जितनी इस टेक्स्ट व्यू की हाइट होगी, उतना ही जो है ना सिर्फ उस टेक्स्ट व्यू की लेंथ और हाइट होगी। सो इसी तरह हमने हाइट में भी किया है रैप कंटेंट, एंड देन वी हैव यूज अनदर एट्रीब्यूट एंड्रॉयड टेक्स्ट। यहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट ऐड कर दिया तो इट विल बी शोन। अच्छा, यहाँ पे हमने स्लैश लगा के जो है ये ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये व्यू यहीं पे एंड हो गया है। एंड देन वी हैव क्रिएटेड अनदर व्यू जिसको हमने आईडी दी है बटन की, और उसकी भी विड्थ और हाइट सेट करी है, और टेक्स्ट उसको दे दिया है हेलो आई एम अ बटन, एंड देन लीनियर लेआउट इज एंडेड। तो बेसिकली यहाँ पे मकसद ये था आप लोगों को समझाने का कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली आप लोगों को समझाने थे कि लीनियर लेआउट के क्या क्या, लीनियर लेआउट के नहीं बेसिकली हर लेआउट के क्या क्या होते हैं। अब इसके अलावा भी एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उस टैग के जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सिर्फ उसी टैग के एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके अलावा वो किसी टैग में यूज़ नहीं हो सकते। ताहा, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू हियर कि हम लोग फीडबैक फॉर्म की लिंक ड्रॉप कर रहे हैं, एंड फॉर फीडबैक फॉर्म इट्स रियली सिंपल कि आप लोग हमें रिव्यूज़ दें अबाउट दिस सेशन, लाइक मीनवाइल दिस सेशन इज़ गोइंग ऑन, एंड या फॉर दिस द सर्टिफिकेट वुड बी बेस्ड कि आप लोग जितने फीडबैक फॉर्म भरोगे, एंड दैट वुड शो कि आप लोग कितने अटेंड कर रहे हो सेशंस, एंड दैट वुड बी अ गूगल सर्टिफिकेट, गूगल साइंस सर्टिफिकेट। सो या डू fill the feedback form which is dropped in the chat. Okay, so let's move on to types of layout. अब लेआउट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? लीनियर लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट एंड टेबल लेआउट। विल एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अच्छा, मैं अभी सिर्फ आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ ना, उसके बाद एंड ऑफ द सेशन में हम जो है वो, एंड ऑफ द सेशन में नहीं मतलब जब ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो आई जस्ट ओपन अप एंड्रॉयड स्टूडियो, और मैं आपको हर किसी का हर लेआउट का कोड दिखाऊंगा कि किस तरह कौन से लेआउट का कोड होता है और किस तरह क्या चीज़ वर्क करती है। ओके, तो लीनियर लेआउट क्या होता है कि आपके पास लीनियर फैशन में व्यूज़ शो होते हैं, व्यूज़ या व्यू ग्रुप्स लीनियर फैशन में शो होते हैं। अब लीनियर फैशन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली व्यूज़ आपके अलाइन होंगे, या फिर वर्टिकली व्यूज़ आपके अलाइन होंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट लीनियर लेआउट। उसके बाद रिलेटिव लेआउट है। अब रिलेटिव लेआउट के अंदर सिंपली क्या होता है कि व्यूज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक व्यू है तो जो सेकंड व्यू की जो पोजीशन होगी वो दूसरे व्यू के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि यू कैन जस्ट स्पेसिफाई कि फर्स्ट व्यू तो ऐसे ही आ जाता है, यू कैन स्पेसिफाई कि सेकंड व्यू जो आ रहा है ये फर्स्ट वाले व्यू के बॉटम पे हो, और जो थर्ड व्यू आ रहा है इट शुड बी एट द बॉटम ऑफ फर्स्ट व्यू एंड ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट ऑफ सॉरी सेकंड व्यू। इसी तरह फोर्थ व्यू, और यू कैन जस्ट बेसिकली इसका आइडिया ये है कि जो व्यूज़ हैं वो आपस में रिलेटिव होती हैं उनकी पोजीशंस, दैट्स इट। उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट आता है। कंस्ट्रेंट लेआउट असल में एक रिलेटिव लेआउट का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, और इसमें फ्लेक्सिबली आप सिंपली जो है ना अपने जो व्यूज़ हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। इसमें रिलेटिव लेआउट की भी फंक्शनैलिटी है। अगर आप रिलेटिव यू नो एक दूसरे व्यूज़ के साथ आप जो है इसको रिलेटिवली पोजीशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन जस्ट ड्रैग द व्यू, और उसके अलावा आप जो आउटर आपका जो व्यू ग्रुप है उसके हिसाब से भी आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। देन वी हैव फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट जो है ना वो मोस्टली इसलिए यूज़ होता है ताकि जो है ना हम इसमें ब्लॉक कर देता है, ये सिर्फ सिर्फ जो है ना एक स्क्रीन को एक एरिया सेव रिजर्व करके रखता है, जिस तरह फ्रेगमेंट्स होते हैं। फ्रेगमेंट्स एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर जो कि एक्टिविटी की तरह से ही होते हैं, लेकिन दे आर थोड़ा फ़र्क होता है इनमें, जो कि क्योंकि ये स्कोप नहीं है हमारे अभी इस सेशन का, तो आई विल नॉट बी कवरिंग दैट, बट जस्ट टू लेट यू नो दैट जो फ्रेम लेआउट है ये सिर्फ उसके लिए एरिया रिजर्व करता है, यानी कि फिर हम पहले फ्रेगमेंट बनाते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं, और फिर फ्रेम लेआउट
का जो एरिया फ्रेम लेआउट ने रिजर्व करा हुआ होता है, वी कैन जस्ट रिप्लेस दैट। तो उसके बाद जो फ्रेगमेंट होता है वो डायरेक्टली फ्रेम लेआउट में आ सकता है। उसके अलावा टेबल लेआउट होता है। टेबल लेआउट की जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि टेबल लेआउट टैग यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद इसकी जो है ना टेबल रो एक और टैग है जिसके अंदर हम उसकी रोज स्पेसिफाई करते हैं कि इस रो में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, और सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, एंड देन वी जस्ट एंड द टैग। ऑलराइट, लास्ट कॉन्सेप्ट, व्यू। Basically what views are. View is the basic building block of the UI in Android. इसका जो लेआउट होता है एक्चुअली वो भी एक व्यू ही होता है। व्यू की सब क्लास होती है। व्यू ग्रुप्स जो है वो व्यू की सब क्लास है। व्यू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और लेआउट भी व्यू होता है। और उसके अलावा डिफरेंट व्यूज़ होते हैं आपके पास। टेक्स्ट व्यू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एडिट टेक्स्ट होता है। एडिट टेक्स्ट एक टेक्स्ट फील्ड होती है जहाँ पे आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं। एंड देन बटन्स होते हैं। बटन्स भी जो है ना वो व्यू के अंदर ही काउंट होते हैं। ओके, तो थ्योरी ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सम practical, and let's make a simple UI. So I'll stop my screen sharing right now, and I'll open up Android Studio. Okay, hold on a minute. Meanwhile, Taha sets up his screen. I want you all to just fill the feedback form which is dropped by Samyullah. And it's really important कि आप लोग fill करें, हमें reviews दें, और so that we can, um, be good every time we do a session. Thank you. Just hold on a minute. Wanted you all to know. Yeah, thank you so much for letting me know. जब तक Mohammed Taha sets up his screen and all that, I want you to know कि जब session complete हो जाएगा, do join the meeting for the quiz. Whoever who wants to win a gift, certificates and all the privileges, आप लोगों को at the end quiz की meeting link दी जाएगी. You guys would be shifted there. So do not forget to enter that meeting right after the session ends. So is it visible? I hope it is. Yes, it is. Okay. So basically जब Android Studio आप open करेंगे तो it will ask for a few options. Okay, let me just show you. Okay. So the screen would be something like this.
it will ask you to create a new project. यहाँ पे आपके recent projects जो हैं वो display होंगे. यहाँ पे it will ask you to create an open existing project, या फिर आप जो है ना आप अपना new project create कर सकते हैं. तो let's create a new project. अच्छा, यहाँ पे it is asking कि आपको किस टाइप की एक्टिविटी चाहिए. ये बेसिकली एक एडिशनल फीचर है. तो जो हम एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, ये लेट्स सेलेक्ट एन एम्प्टी एक्टिविटी. उसके अलावा भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जो एक्टिविटी हम सेलेक्ट करेंगे उसका जो है वो कुछ एडिशनल कोड एंड्रॉयड स्टूडियो हमें बना के देगा. एंड देन देयर इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, कि आपने नेम कौन सा रखना है एप्लीकेशन का. उसके बाद देयर इज़ अ पैकेज नेम, द लोकेशन ऑफ दिस एंड्रॉयड ऐप. एंड देन दिस इज़ द लैंग्वेज सेक्शन, जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जावा या कोटलिन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो प्रोग्रामिंग करने में. आई यूज़ जावा. एंड देन देयर इज़ द मिनिमम SDK, यानी कि ये जो ऐप आप बनाने जा रहे हैं इसके लिए मिनिमम डिवाइस कौन सी होनी चाहिए, जिस मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन कौन सा होना चाहिए इस डिवाइस के पास, उस डिवाइस के पास जिस पे भी ये ऐप रन हो. तो अगर एंड्रॉयड 7 यहाँ पे और क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है. एंड यहाँ पे आपको स्टैट्स भी ये दिखा रहा है कि 73.7% जो है ना ये डिवाइसेस इस ऐप को रन कर सकेंगी. तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट, अगर आप इसका वर्जन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. अगर मैं 8 करता हूँ तो यहाँ पे स्टैट्स चेंज हो गई हैं. तो लेट्स जस्ट फिनिश करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा. ओके, तो दिस इज़ द कोड. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेन एक्टिविटी हमने एम्प्टी एक्टिविटी हमने सेलेक्ट करी, तो कुछ कोड ऑलरेडी हुआ होता है इसमें ना. तो यहाँ पे एक्टिविटी का कुछ कोड ऑलरेडी डन है जावा लैंग्वेज में. ये XML कोड है आपका, वो भी ऑलरेडी डन है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग a UI, I just want you guys to let यहाँ पे SDK मैनेजर एक है. यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा. इफ़ यू कैन सी मी माई माउस पॉइंटर पॉइंटिंग इट, SDK मैनेजर आप ओपन करेंगे तो देयर आर डिफरेंट SDKs जो आप अपने पास जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं. बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है ना, जो आप अपनी प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे एमुलेटर की APK भी आप एमुलेटर का जो है ना SDK आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज़ एमुलेटर यू कैन जस्ट चेक बॉक्स एंड अप्लाई जब आप करेंगे तो इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग. मैं एमुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी इंस्टॉलिंग दैट. उसके अलावा these are different SDKs. ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए ताकि आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकें. Taha, Okay. can you increase your font size of the code that you are showing right now? I can, I guess. Just hold on a minute. Taha, somebody from the chat in the chat box is saying like कि editor settings में ही होगा the font size. Okay, I just opened the magnifier. I think it will do.
Does that make any difference? Yeah, it did. Okay. So as you can see, this is the सिंपल UI बेसिकली जो आप नए जब आप एक्टिविटी अपनी फर्स्ट एक्टिविटी जब आप मेन एक्टिविटी अपनी स्टार्ट बनाते हैं तो आपको एक XML फाइल ऑलरेडी मिलती है जो कि उसका लेआउट डिफाइन करा हुआ होता है जिसमें एंड जावा फाइल जिसमें उसका फंक्शनल कोड होता है, बेसिक फंक्शनल कोड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रिएट मेथड ओवरराइड करना नेसेसरी होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑन क्रिएट मेथड ओवरराइड हुआ है और जो है उसके अंदर जो बेसिक फंक्शन है बेसिकली यहाँ पे जो सेट कंटेंट व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट दिस r.layout.main एक्टिविटी डज। तो r बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल रिसोर्सेज होती हैं RES फोल्डर में, तो उनको फंक्शनल कोड के अंदर एक्सेस करने के लिए वी यूज दिस r क्लास r.layout.activity main। एक्टिविटी मेन बेसिकली क्या है, ये इस लेआउट का नेम है और ये क्या करेगा कि ऑन क्रिएट करते ही ये जो है ना सेट कंटेंट व्यू क्या करेगा कि इस एक्टिविटी के ऊपर इस लेआउट को शो करवा देगा जो भी आपने उसके अंदर डिजाइनिंग की है। इट विल बी शोन ऑन दिस एक्टिविटी व्हेन यू लॉन्च योर ऐप। तो या दैट्स व्हाट दिस डज। और इसके डिफरेंट वेज होते हैं डिज़ाइनिंग करने के, या तो आप सिंपली XML के अंदर कोड राइट कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ दिस डिज़ाइन टैब जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जो है ना वो डिज़ाइन ऑलरेडी जो है ना बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अब यहाँ पे एक कंपोनेंट ट्री आपको दिया हुआ है। कंपोनेंट ट्री का मतलब ये है कि ऑन टॉप लेवल यू हैव दिस ये आपको जो है ना ट्री के फॉर्म में शो करवाएगा कि कौन से व्यू ग्रुप्स हैं आपके पास या कौन कौन से व्यूज़ हैं। तो टॉप लेवल एज यू कैन सी देयर इज दिस कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके जो अंदर हमें दिया हुआ है वो है टेक्स्ट व्यू। अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंडेंटेशन का फ़र्क है ऊपर और नीचे में, जो कि ये शो कर रहा है कि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है पैलेट। अब पैलेट में बेसिकली आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इमेज व्यू दिया हुआ है, रिसाइकलर व्यू दिया हुआ है, फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं। अब बटन को अगर आपने इस लेआउट के अंदर डालना है तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे कि इसको क्लिक करोगे, यू जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट हियर इन द लेआउट। जब आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे शो कर देंगे तो बटन इस तरीके से कुछ आपके पास शो होगा। अब ये जो 4 डॉट्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट हमने जो है ना बेसिकली यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे मिलता है हमें। तो अभी यहाँ पे ये हमें एरर इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने इसके कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो हमने सेट नहीं करे हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट में आप फ्रीली सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर कंस्ट्रेंट मुझे सेट करने होंगे तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये मैंने ऊपर वाला डॉट ड्रैग करा एंड आई जस्ट ड्रैग्ड इट टू द टॉप लेवल। बिल्कुल टॉप पे जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया जो कि इस लेआउट की कंस्ट्रेंट लेआउट की लेंथ है। एंड देन नीचे वाला जो डॉट है कंस्ट्रेंट है वो मैंने इस तरह से ड्रैग करके कर दिया तो 2 कंस्ट्रेंट सेट हो गए। एंड देन आई ड्रैग दिस लेफ्ट वन एंड राइट वन, तो ये मेरे पास सेट हो गया। अब मैं इसको किसी भी तरह ड्रैग करके कहीं भी मुझे प्लेस करना होगा मैं उसको प्लेस करके छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है किसी भी कंपोनेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी जो है वो आईडी शो हो रही है। आईडी मतलब इसको किस आईडी से जो है ना वो डिनोट किया जाएगा और किस तरह से इसको शो किया जाएगा, किस तरह से इसको अगर एक्सेस करना होगा तो कौन सी आईडी हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे इसकी आईडी बटन ही रहने देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसकी विड्थ है कि किस तरह की इसकी विड्थ होनी चाहिए, इसकी हाइट
किस तरह की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दो, अगर इसको मैं या यहाँ पे रैप कंटेंट दिया हुआ है, रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना इसमें लिखा होगा बटन उस हिसाब से रीसाइज हो जाएगा। एंड देन देयर आर a few other properties जो कि कंस्ट्रेंट का बॉटम है वो बता रही है। बॉटम हमने इसका पेरेंट ही रखा है, इसका जो एंड है वो भी हमने पेरेंट रखा है, स्टार्ट भी हमने पेरेंट रखा है, एंड मतलब राइट और स्टार्ट मतलब लेफ्ट, और टॉप भी हमने पेरेंट ही रखा है। आईडी अगेन इसकी यहाँ पे आ गई। अगर टेक्स्ट हमने इसका चेंज करना है तो वी कैन जस्ट रिमूव दिस एंड दिस, वी कैन जस्ट राइट एनीथिंग। दिस इज अ बटन, so as you can see when I click here, ये इसका टेक्स्ट चेंज हो गया। Let me just zoom in a little bit. Now this is a button, this text is changed. So उसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, you will just explore it when you go along with it. उसके बाद कोड में देखोगे, कोड में जिस तरह मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू की यहाँ पे आईडी दी हुई है, टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है, वी कैन जस्ट चेंज दैट एज वेल। दिस इज ए टेक्स्ट व्यू, we can just do that. Okay, so अब जबकि आपको बेसिक्स पता चल गई हैं तो लेट्स मेक अ सिंपल साइन अप एक्टिविटी जिसका हम सिर्फ जो है ना डिज़ाइन बनाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। फर्स्ट जस्ट डिलीट दिस, we'll make it from the scratch. बेसिक हमने शुरू में जो लेआउट लिया हुआ है दैट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। सो व्हाट वी नीड राइट नाउ इज ए टेक्स्ट व्यू जो कि हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। लेट्स define its constraints, parent, parent, parent and parent. Let's just drag it here and नाम हम इसको दे देते हैं sign up। ओके, नाम चेंज हो गया। Let's make a few more changes. Okay, let's make the skeleton first ना। sign up activity, sign up यहाँ पे हमने लिख दिया and then we need another text view, बल्कि we don't need text view ना, we need a text field. We'll go into this text tab from the left of the palette and we will select this plain text और इस plain text को हम ड्रैग करेंगे सिंपली यहाँ पे। Let's just set constraints. प्लेन टेक्स्ट बेसिकली क्या है हमारा, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे यूज़र अपना डेटा एंटर करेगा। ओके, वी नीड अनदर टेक्स्ट फील्ड फॉर द पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए यहाँ पे अलग से एक टेक्स्ट फील्ड दी हुई है। फर्स्ट इज प्लेन टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट के अंदर आप सिंपली जो भी टाइप करोगे वो शो होगा, लेकिन पासवर्ड हमने शो नहीं करवाना। तो यहाँ पे एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट फील्ड दी हुई है जो कि पासवर्ड के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। तो विल जस्ट ड्रैग दैट ताकि हम जो भी लिखें इज़ नॉट शोन। तो इसको हम रिलेटिव बनाएंगे इससे, बजाय पेरेंट के करने के मैंने जो टॉप है इसका कंस्ट्रेंट वो मैंने इस पे कर दिया, जो अब यूज़र नेम वाली फील्ड थी उससे रिलेट कर दिया। एंड देन बॉटम इसका वही पेरेंट्स है, लेफ्ट अगेन पेरेंट एंड राइट अगेन parent. So
this, and then we need a button. We'll just go in the buttons, and then there is a button. We'll drag it down here, just place it right at the bottom of our password field, और इसको भी मैं password field से relative बनाऊंगा. इसका top constraint, इसका bottom constraint वही parent से, right parent से, left parent से, and then we just, तो basically design हमारा complete हो गया है. इसमें बस हमें थोड़ी बहुत changes करनी होगी कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा. Let's just change it a bit. इसका font size change करें अगर, properties में आके we just drag down. अच्छा, properties में मतलब इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करने में आपको एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है. नुकसान बस ये है कि आपको कंपोनेंट्स ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा. अगर आपको XML में अगर आप कोडिंग करते हैं एंड इफ़ यू नो द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर लेआउट, तो आप सिंपली कोड में जाके स्प्लिट में क्या होता है कि आपको जो है ना वो डिज़ाइन भी नज़र आ रहा होता है और कोड भी नज़र आ रहा होता है. इफ़ यू सिलेक्ट द स्प्लिट स्क्रीन, सो लेट्स जस्ट डू इट इन द XML. एडिट टेक्स्ट हमारे पास, टेक्स्ट व्यू हमारे पास ये है, एंड लेट्स चेंज द टेक्स्ट साइज. अब इसका टेक्स्ट साइज किस तरह चेंज करेंगे कि वील जस्ट राइट TEXT टेक्स्ट एंड देन साइज. अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे सजेशंस शो करता रहता है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आपके लिखने से पहले ही जो है आपको वो शो कर देगा. इट विल सेव टाइम और यू कैन जस्ट स्पेसिफाई द टेक्स्ट साइज. अब यहाँ पे टेक्स्ट साइज स्पेसिफाई करने के लिए लेट्स जस्ट सेट इट टू, और ये होता है SP. SP एक समझ लें कि यूनिट है जो कि ये शो करता है कि जितना भी यूज़र का जो टेक्स्ट साइज यूज़र ने अपने पास रखा होगा, प्रेफर्ड टेक्स्ट साइज अपनी डिवाइस में, उस हिसाब से ये रीस्केल हो जाएगा. ओके, तो लेआउट विड्थ यहाँ पे ऑलरेडी सेट हुई भी है. जस्ट राइट इट wrap content and wrap content. Yes. We are running out of time, तो क्या हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं इसको यहाँ पर स्टॉप करके? Sure we can, I think. बस ये हो गया है ऑलमोस्ट ना. मैं या तो रन करके दिखा दूँ. I was just designing. हाँ, रन करके दिखा दें, डिजाइन कल कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे. चलें ऐसा कर लेते हैं. Just wait a sec. अच्छा, इसको रन करने के दो तरीके हैं. या तो आप एमुलेटर से रन करते हैं, या फिर आप सिंपली जो डिवाइस आपके पास होती है उससे रन करते हैं. जैसे मैंने अपनी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट की है, तो इट हैज़ शोन मी द डिवाइस नेम. अगर आपको एमुलेटर से रन करना है तो यू कैन जस्ट अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा AVD मैनेजर. AVD मैनेजर आप ओपन करके अपने पास एमुलेटर को सेट कर सकते हैं. क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है. यू कैन जस्ट क्लिक एंड डू दैट. सो let's just run this app that we have created. एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा टाइम लेता है बिल्ड करने में एप्लीकेशन को. Okay, so it is installed. Let me share my mobile screen.
I can show you. Is my screen visible? Yes sir, Yes, it is. Okay, so as you can see यहाँ पे हमने layout create किया था. The layout is here. उसका जो text view है it's here. उसका जो text fields हमने create की थी they are here too. अभी हमने इस पे कुछ फंक्शन सेट नहीं किए हैं तो इसी वजह से they are non-functional and the button I'm pressing it and it is not doing anything because we have not defined the functions. पासवर्ड फील्ड में आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है एंड इट इज नॉट shown. So this was a simple just UI, you know, and yeah, that's it. Okay, so since it's the end of this session, now I would want ke aap sare, I guess you guys would have learned a lot. So we'll go on to the quiz meeting, and the meeting for the quiz is being dropped here. और जिन लोगों ने RSVP fill किए थे, please, those people are really invited to join. The rest can leave the meeting. If you haven't filled the RSVP, you can't go in that quiz meeting. Thank you. See you there in the quiz meeting, and thank you, Muhammad Taha, for this lovely session. Looking forward to seeing you in session day 2 as well. Allah Hafiz. Hafiz, thank you for having me. Thank you. Allah Hafiz.